Good morning all the students of class 12th. Student, before I start today's lesson, I want to tell you about the syllabus this year. As you know, due to this COVID-19, our online classes are going on, but students as well as teachers are facing some problems in this online type of teaching. So our government has decided to cut down 30% course this year. So students, first let me tell you, in prose, short story and poetry, which lessons you need not to study this year. So let's go. Friends, in prose, you need not study lesson number 3rd and lesson number 5th. So you have to study only 5 lessons: A Girl with a Basket, A Fellow Traveler, The Homecoming, Women's Education and the Heritage of India. These are 5 lessons for you this year in prose. Now come to short stories. You need not study short story number 4. The first 3 short stories are in your syllabus this year, as The Gold Watch, An Astrologer's Day and The Lost Child. Come to poetry. There are 3 poems which you need not to study this year: poem number 4, poem number 6 and poem number 9. Now let me tell you 7 poems which you have to study this year. The first poem, Character of a Happy Life. Second, The True Beauty. Third, On His Blindness. Fifth, A Lament. 7 from Passing of Arthur. 8, My Heaven. And the last, The Song of the Free. So you have to study only these 7 poems this year. Next is the drama The Merchant of Venice. Students, this drama has also been excluded from your syllabus this year. So इस प्रकार आपको इस वर्ष जो लेसन्स स्टडी करने हैं वो मैंने आपको बताया. प्रोज में 5 लेसन्स, शॉर्ट स्टोरी में 3 लेसन्स और पोइट्री में 7 पॉइंट्स आपको पढ़नी है. फ्रेंड्स, इन प्रोज आई हैव टॉट यू 2 lessons. The first lesson, A Girl with a Basket, and second, A Fellow Traveler. In short story 2, I completed the first lesson, The Gold Watch, last week. And so far as poetry is concerned, 2 poems have been taught to you: Character of Happy Life and The True Beauty. So today I have decided to start your 3rd poem, On His Blindness. So let's go for it. Today's poem, On His Blindness, I want to revise you the kinds of poetry. I have already told you in detail about 2 kinds, subjective and objective, आत्मविषयक और वस्तुपरक. इसमें वो कविताएं आती हैं जिसमें कवि अपनी किसी फीलिंग्स को, इमोशंस को या अपने किसी एक्सपीरियंस को शेयर करता है. जबकि ऑब्जेक्टिव में कवि अपने विषय में कुछ भी नहीं बताता, वो किसी अन्य व्यक्ति की स्टोरी सुनाता है या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कविता पढ़ता है. उसमें कवि उसमें कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता है. तो इस प्रकार सब्जेक्ट को फिर से 4 भागों में बांटा गया है: लिरिक, ओड, एलेजी, सोनेट. ये छोटा गीत होता है जो संगीत के साथ बजाया जाता है. ओड लिरिक का ही एक रूप है. ओड में जिसके विषय में कविता लिखी गई है उसको संबोधित किया जाता है. और एलेजी शोक गीत होता है जो मृत्यु के बाद गाया जाता है. सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है. तो इस प्रकार मैं डिटेल में इनके बारे में सब बता चुका हूं. I want to tell you that today's poem, On His Blindness, is sonnet. So पहले सोनेट को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और फिर ये पोएम शुरू करते हैं. ओके. As I have already told you about sonnet in detail, let me revise you here. सोनेट 2 प्रकार का होता है: पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन. इसको इटालियन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इटली में पेट्रार्क नाम के पोएट ने इसको लिखा था, और आफ्टर दैट ये इंग्लैंड में पहुंचा और वहां पर इसको शेक्सपियर ने सबसे पहले लिखा, तो इसको इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है. क्या डिफरेंस है दोनों में? लाइंस इसमें भी 14 होती हैं और इसमें भी 14 होती हैं, लेकिन इन्होंने 14 लाइंस को 2 भागों में बांटा है. 8 लाइन का एक स्टेंजा होता है और 6 लाइन का दूसरा स्टेंजा. तो इस तरह से 8 लाइन के स्टेंजा को ऑक्टेव कहा जाता है और 6 लाइन के स्टेंजा को सस्टेट. शेक्सपियर ने इसको चेंज कर दिया. उन्होंने ये 14 लाइंस को 4 भागों में डिवाइड किया: 4 लाइंस, 4 लाइंस, 4 लाइंस एंड 2 लाइंस. 4 लाइंस
का क्वार्टेन होता है, चौपाया, और 2 लाइन्स का कपलेट होता है, इसको दोहा हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार के सोनेट होते हैं। अब आज की जो पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप पढ़ने जा रहे हैं, लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ पेट्रार्कन सोनेट। ये पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट है और इसमें आपको 2 स्टेंजा पढ़ने हैं, ऑक्टेव और सस्टेट। तो लेट मी टेल यू दैट पेट्रार्कन सोनेट में जो 2 स्टेंजा होते हैं, उसमें फर्स्ट स्टेंजा जो ऑक्टेव होता है, उसमें पोइट कोई भी प्रॉब्लम बताता है या कोई भी शिकायत करता है, और लास्ट की जो 6 लाइन्स हैं उसमें उस प्रॉब्लम्स का जो है हल बताया जाता है, या फिर जो उसकी शिकायत है उसका निराकरण होता है। तो हियर ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी जो जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोइम है, जॉन मिल्टन ने अपनी कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम बताई है और उस प्रॉब्लम का हल भी उसके अंदर सस्टेट में बताया गया है। तो लेट्स रीड दिस पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, composed by John Milton. First, let me tell you about him. He was born on December 9, 1608 in London. His father was a lawyer, and for your surprise, his name was also John Milton. Okay, John Milton got his graduation degree from Cambridge University, and then he joined MA also. He was a highly qualified and a great poet, prose writer, and even epic writer. Students, on his blindness पढ़ने से पहले आपको इस पोइम का बैकग्राउंड समझना है। सो जॉन मिल्टन ने महाकाव्य द पैराडाइज लॉस्ट लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी आईसाइट वीक होना शुरू हो गई, एंड आफ्टर सम टाइम ही बिकेम ब्लाइंड। द पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, और एपिक जो होते हैं वो धार्मिक पृष्ठभूमि पर होते हैं। इसमें जो स्टोरी होती है वो किसी पूजनीय व्यक्ति के विषय में होती है। तो द पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जीसस क्राइस्ट के विषय में लिखा हुआ एपिक है। जॉन मिल्टन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। सो मिल्टन लॉस्ट हिज आईसाइट एट द एज ऑफ 44 ओनली। वो सिर्फ 44 वर्ष के थे जब उनकी आंखों की दृष्टि चली गई। वो मैरिड 3 टाइम, जबकि उन्होंने 3 शादियाँ की। ही नेवर एक्सपीरियंस ब्लिस इन मैरिज, लेकिन शादी में उनको खुशी नहीं मिल पाई। His daughters remained unmarried for the sake of their father. उनकी जो बेटियां थी वो भी अपने पिताजी के लिए अनमेरिड रहीं। And took the poems of Milton to dictation, और उन्होंने ही मिल्टन की कविताओं को डिक्टेट किया। ये पैराडाइज लॉस्ट भी उनकी पुत्री ने ही कंप्लीट कराया। वो बोलते रहते थे और उनकी पुत्री लिखती रहती थी। इनफैक्ट इन द लेटर ईयर्स ऑफ मिल्टन हिज डॉटर्स बिकेम द आइज एंड ईयर्स ऑफ द ब्लाइंड पोएट। इस अंधे कवि की आंखें और कान जो है इनकी बेटियां ही बनी। बट ब्लाइंडनेस बिकेम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द पोएट। लेकिन ये जो अंधापन था उनके लिए ब्लेसिंग बन गया, वरदान बन गया इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। फोर्थ में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो दिखाई नहीं दे रहा हो ऐसा वरदान। यद्यपि ब्लाइंडनेस एक तरह का वरदान नहीं हो सकता, यह अभिशाप होता है, परंतु ये ऐसा वरदान था जो दिखने में तो अभिशाप था, परंतु उसके पीछे क्या था, वरदान छिपा हुआ था। रियलिटी क्या है, एक अंधे आदमी के लिए ईश्वर में आस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है, वह ईश्वर की शक्ति को और ज़्यादा पहचानने लगता है। और सेम यही जॉन मिल्टन के साथ में हुआ। उन्होंने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखना शुरू किया था उस समय बल्ब नहीं होते थे, तो रात के अंधेरे में ऑयल लैंप्स में वो लिखा करते थे, और ये लिखते लिखते ही उनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी। पैराडाइज लॉस्ट वो ये सोचकर लिख रहे थे कि ईश्वर मुझसे खुश होगा, क्योंकि ये ईश्वर की शक्ति को दिखाने के लिए, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की आस्था में ये एपिक उन्होंने लिखना शुरू किया था। और अब वो बहुत हेल्पलेस हो गए थे कि अब उसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने ईश्वर से जो शिकायत की है ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम की इस पोइम में, तो 8 लाइन का जो ऑक्टेव है उसका यही सेंट्रल आइडिया है कि हे ईश्वर, मेरे पास एक ही तो टैलेंट था, एक ही तो मेरे पास गुण था जिसका मैं तेरे लिए प्रयोग कर रहा था, और मेरा जीवन अभी आधा भी नहीं गुजरा है। स्टूडेंट, जब उनकी आईसाइट गई तो वो 44 ईयर्स के थे, और बाइबल के अकॉर्डिंग नॉर्मली जो एवरेज है ह्यूमन लाइफ की वो 70 ईयर्स है। तो इस
तरह से वो अपने आप को समझते थे कि अभी मेरी मिडिल एज है, तो अभी आधा ही जीवन मेरा गुजरा है, तूने मेरी आंखों की रोशनी ले ली है, अब मैं तेरी कैसे मैं इबादत करूंगा, मैं तेरी कैसे भक्ति करूंगा, कैसे तेरी पूजा करूंगा। तो ये शिकायतें उसने की है, और इन शिकायतों के जवाब में उनकी अंतरात्मा ने ही उनको सांत्वना दी, उनको कंसोल किया। अंतरात्मा ने कहा कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति की कार्यों की आवश्यकता नहीं है, उसको उन टैलेंट्स को वापस लेने की भी आवश्यकता नहीं है जो उसने हमको दिए हैं, वो तो सिर्फ इंसान को आजमाता है। इसलिए इंसान को सिर्फ क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो धैर्य ही बहुत बड़ी इबादत है, धैर्य ही बहुत बड़ी भक्ति है। तो ये इस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया है। तो स्टूडेंट, ये जो सस्टेट में उनके अंदर आत्मा ने जवाब दिया, ये रियलिटी में भी सत्य सिद्ध हुआ। ऑन हिज ये पैराडाइज लॉस्ट जो लग रहा था कि शायद पूरा नहीं हो पाएगा, ईश्वर ने वो पूरा उनसे कराया, भले ही इसमें उनकी डॉटर्स ने उनको हेल्प की हो। तो इस प्रकार ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मैंने आपको अभी बैकग्राउंड बताया है। स्टूडेंट्स, आई वुड टीच दिस पोएम टुमारो। टुडे यू हैव टू रीड these 14 lines and learn the difficult words which are used in this poem. That's all for today. See you tomorrow. All the very best. All the students of 12th A must go to my channel for watching the videos of previous classes. Okay?